Now, whenever a charged particle is placed in a magnetic field, is placed, now listen to my words very carefully. I'm saying it is placed in a magnetic field. That means the charged particle is stationary. So a stationary charged particle does not experience any force. So a stationary charged particle at all does not interact with the magnetic field. And if the charged particle is moving with any velocity inside the magnetic field, provided its velocity is not directed along the direction of magnetic field, then it starts experiencing a force, and the magnitude of this force is given by the formula F is equals to QVB sine theta. And one very important aspect of this force happens to be that this force is going to be directed perpendicular to the direction of the magnetic field as well as the as to the velocity of the charged particle. So what you need to understand that whenever a charged particle is moving in a direction other than the direction of the magnetic field, the charged particle starts experiencing a force. The magnitude of the force is given by the formula F is equals to QVB sine theta. And this force is going to be perpendicular. This force is going to be perpendicular to the velocity vector also as well as to the magnetic field vector also. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है. किसके किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी, और इन जनरल मैं कह सकता हूं it will be perpendicular to both, sorry not both, and it will be perpendicular to the plane containing velocity vector and magnetic field vector. So kindly pay attention on to these points. तो जब कभी भी आप इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस फोर्स के साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने वाला. कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूं? मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं. अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, इसलिए ऐसा फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा. ये ध्यान रखिएगा. ऐसे फोर्सेस जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे फोर्सेस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाते या नहीं करते. और ऐसे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाते हैं. और ऐसे फोर्सेस की प्रेजेंस में पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है. So please try to understand the consequences that gets associated with a force which happens to be perpendicular to the velocity vector. So what are the consequences that are associated with the force which is perpendicular to the velocity vector? I'm just going to write it down. Since force is perpendicular to velocity vector, therefore पहली बात, such forces cannot change the magnitude of the velocity vector. That is, speed of the particle remains constant. क्लियर है बात बच्चों? फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, इसलिए ऐसा फोर्स मैग्नीट्यूड
ऑफ द वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अब चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, अब यहां पे ध्यान से बात को सुनिएगा, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है और चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, सिंस speed remains constant, change in kinetic energy will be zero then। अरे भाई स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलने वाली है ना। यस सर। और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाली है तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया हुआ वर्क डन भी जीरो होगा ना। अरे जब वर्क डन तो तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आता था पिक्चर में। अब यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया कोई भी वर्क, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, thus नो वर्क will be done by magnetic force। क्यों? Because by work energy theorem work done is always equals to change in kinetic energy, और वो change in kinetic energy जीरो था, इसलिए work done भी जीरो हो गया। दो बातें समझ में आई, consequences of force being perpendicular to the velocity। Now what is the third consequence is the path taken। Since force is perpendicular to velocity, therefore such forces are often referred as centripetal force, are often referred as centripetal force। And under the influence of such force, the particle travels सर along एक सेकेंड बेटा, along a circular path। अब चूंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बेटा एक सेकेंड, लेट मी फिनिश ऑफ विद दिस स्टेटमेंट, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। ओके, तो चूंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और जब कभी भी फोर्स किसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। दैट इज such forces will be directed towards the center of the motion of the particle, and under the influence of such forces the particle undergoes a circular motion। so यहां पर भी जो पार्टिकल जो पाथ लेगा वो कैसा पाथ लेगा, वो भी सर्कुलर पाथ होगा। now the next important thing that you should understand is how to find out the direction of this force। now the direction of this force is given by the फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों ये आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। अब ये ध्यान रखना है कि आपको, मतलब जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आपको याद ही नहीं आता यार मैक्सवेल का रूल लगना है कि फ्लेमिंग का लगना है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो एक बड़ा छोटा सा फैक्ट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। अब देखो, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड and M for Maxwell। Yes, sir. So what I was telling you कि ये जो confusion है इसको हैंडल करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। क्या वो तरीका? Let's try to understand that। कि M for magnetic field और M for Maxwell। तो बेटा जब कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो तुम किसका रूल लगाओगे? मैक्सवेल का। और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल होता है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। और जब कभी तुम्हें फ्लेमिंग का नाम याद आ जाए तो फ्लेमिंग, एफ फॉर फ्लेमिंग एंड एफ फॉर फोर्स, यानी अगर तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स का,
तो कौन सा रूल यूज करोगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग में देखो एल लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगना है। क्लियर है ये बात? yes, ठीक है, तो ध्यान फ्लेमिंग रखिएगा वाला दो नहीं सर, बातों फ्लेमिंग को। वाला किसके लिए? फ्लेमिंग वाला Force. फोर्स के लिए, मैक्सवेल वाला मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक सर। So the direction of the force is given by the Fleming's left hand rule. And what does the left hand rule is going to suggest, and how we are going to use this left hand rule? Let's try to understand that part. Thumb points in the direction of current. Sorry, thumb points in the direction of force. Can you see this? Thumb किधर की तरफ point कर रहा है? In the direction of force की तरफ point करता है। अब जो तुम्हारी first finger है, this first finger must point along the direction of magnetic field. और जो ये second finger है, this should point in the direction of motion of the positive charge, motion of positive charge. बच्चों ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन है या फिर करंट और करंट। नेगेटिव चार्ज में ऑपोजिट डायरेक्शन बना लेना विकी। सो once again I repeat, while using the Fleming's left hand rule, thumb must point in the direction of the magnetic force that you are about to find out. First finger must be pointing out in the direction of the magnetic field, whereas second finger must be pointing along the motion of the positive charge or along the direction of the flow of current. Now, whenever you need to move your hand, remember you should move your wrist rather than moving your finger. Once this finger has been made in this particular direction as been indicated in the figure, the only one thing that you should remember is that कि एक बार ये आपने ये फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर लिया जैसा इस डायग्राम में बना हुआ है। इस स्ट्रेचिंग के बाद इस तरह से स्ट्रेच, जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग का तरीका है, मतलब थंब ऊपर की तरफ, फिंगर आगे, फर्स्ट फिंगर आगे, सेकंड फिंगर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट फिंगर। एक बार ऐसे स्ट्रेच कर लिया बच्चों ना, तो फिंगर का डायरेक्शन चेंज नहीं करना। अब आप अपने रिस्ट को घुमाकर, फिंगर्स को जैसे रिस्ट को घुमाकर हाथ को चाहे जैसे रीअलाइन कर लीजिए, लेकिन फिंगर्स का रीअलाइनमेंट नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे इस चीज को, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते टाइम फिंगर्स के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब वो फिंगर्स के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, उसकी वजह से ही सारे फिंगर्स सारे डायरेक्शन के साथ प्रॉब्लम आती है। आपको फिंगर्स का ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आपने फिंगर का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस इज माय फिंगर दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, एंड इफ यू नोटिस, this is the thumb which is pointing in the upward direction. This is the first finger which is pointing in the direction of the magnetic field and towards the right, and this becomes my second finger which is going to point in any direction. In this case it is pointing at the backward direction. Since it is not visible to you, so you can see this is pointing in the backward direction. All three fingers are mutually perpendicular to each other. All these three fingers are pointing, or rather directed perpendicular to each other. This is in the upward, this is towards the right side, and this is back and forth. So this is in the backward direction. So this is basically a way of forming the coordinate axis XYZ. But how these coordinate axes are oriented, that's what these three fingers are telling you. This is the force direction, this is the magnetic field direction, and this happens to be the second finger happens to be the direction of the motion of the positive charge, or the direction of the current, the direction along which the current is flowing. Now what I am saying, what you can do, you can move your finger, your wrist like this. Okay, one can move the wrist in any direction. 360 डिग्री से आप wrist को तो move कर सकते हो,
रिस्ट का मोशन आप 360 डिग्री डायरेक्शन से लाओगे, फिंगर्स को कभी भी आप इस ओरिएंटेशन से चेंज नहीं करेंगे। ये जो ओरिएंटेशन आपकी बनी हुई, इसमें आप ऐसे ऐसे फिंगर्स को नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इज दिस डिस्कशन क्लियर टू एवरीवन? Sir, so Yes, sir. basically it is that index Yes, sir. finger is what we get with the right hand thumb rule. What? I didn't get you, beta. Sir, index finger is what we get with the right hand thumb. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में जाता है। ज्यादातर आपको मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, यानी थंब से आप मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। ये जो पहली फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, जो आपको प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में दी जाएगी। और जो ये सेकेंड फिंगर है ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा। जो सेकेंड फिंगर है वो किस डायरेक्शन में होगा? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलोंग होगा। चलो एक क्वेश्चन को करते हैं ना, तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी हम लोगों को इस बात को समझने में। Before I begin with a question on how to find out the direction of the force, let me just give you few more points on the forces. Now, this force, as I told you, is always going to be perpendicular to the direction of magnetic field as well as to the direction of the velocity of the charged particle. Now, if the charged particle is moving perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है ना बच्चों? अगर charged particle यहां इस फॉर्मूले को अगर तुम ध्यान से देखोगे, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, इसमें थीटा क्या है? थीटा एंगल है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। तो अगर V इज परपेंडिकुलर टू B, तो थीटा कितना हो जाएगा उस केस में? अगर V इज परपेंडिकुलर टू B तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। आया ना? Yes, sir. और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और इस सिचुएशन में तुम्हारे पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QVB। और तुम 90 डिग्री से किसी भी डायरेक्शन में आओगे तो क्या होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। अगर थीटा 0 या फिर 180 डिग्री हो गया, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 या 180 डिग्री, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट फायर करता है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा नहीं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. That is what Sir, Yes, line sir. number six. that is what you should look when you are looking in the numerical problem, कि कहीं ऐसा तो नहीं है चार्ज पार्टिकल तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फायर कर दिया गया, तुमसे फोर्स निकलवा रहे, तुम मेहनत किए जा रहे हो। खासतौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना। इज दिस ओके टू एवरीवन? जी सर। Now let's do some question on finding out the direction of force using Fleming's left hand rule. Okay, now let me just mark the direction of the magnetic field. This is cross, this is cross, this is cross. What does the cross represents? This cross Inwards. is representing the direction of magnetic Side. field, and this is directed inside the plane of screen. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड inside the plane of
स्क्रीन, तो बच्चों ये जो स्क्रीन का प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जा रही है, क्रॉस से मैंने इंडिकेट कर दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और अब मैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल को फायर कर रहा हूं। अब ये चार्ज पार्टिकल, अभी मैं फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए इस चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लेता हूं, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड। Is that clear? It is moving towards the right hand side. Yes, So sir. the question is, in what direction, the moment it enters inside the magnetic field, in what direction will the force be experienced? So J cap. माइनस के कैप। एक सेकंड सर ये अब राइट पे जा रहा है। सबसे पहली प्लस चीज, सबसे पहली चीज जो तुम्हें सोचनी है, तुम्हें किसका डायरेक्शन निकालना है? फोर्स का ना। सर फोर्स के जे डायरेक्शन को कैप सर। निकालने के लिए, फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करने जा रहे हैं भाई? पहले तो रूल बताओ। Fleming's left hand rule. So the rule that we are going to apply will be Fleming's left hand rule. कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Why only Fleming's left hand rule? Because Fleming, क्योंकि फोर्स निकालने से हाँ, फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स ने ही रूल दिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में फिंगर्स को तुमने रीओरिएंट कर लिया। चलो जैसा मेरे साथ साथ देखो कैसे फिंगर्स का ओरिएंटेशन आ रहा है। Now if you look, this thumb is going to give me the direction of the force, isn't it? Yes. First finger will give me the direction Yes, sir. of the magnetic field, Magnetic. isn't it? And this is the Yes, motion sir. of the positive Yes, charged sir. particle. This finger is going to tell me the motion of the positively charged particle. Yes, sir. Now this is pointing inside the plane. This needs to be point inside the plane. Yes, sir. So this Yes, finger sir. is, see, this finger is pointing inside the plane, and this is the direction of motion of the positive charge. That's Motion of towards the right hand positive. side. Towards the right hand side. देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि सीधे सीधे देखो, जो कि सीधे सीधे यूं जा रहा है अंदर की तरफ। दिख रहा है ये? Yes, sir. ये चला गया तुम्हारा राइट साइड में। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? जे कैप। जे कैप। तो बच्चों यहाँ पर जो Yes, sir. फोर्स लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर, वो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, यस सर। जे कैप की तरफ। तो फोर्स जी, का सर। डायरेक्शन जे कैप की तरफ आ गया। समझ में आया कैसे तुम्हें डायरेक्शन निकालना है? यस हाँ सर। सर। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, अब दूसरा एक क्वेश्चन करो जरा सा, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग, again I'm taking a positive charge particle. Now this charge particle is entering from the top, and this is the direction of motion of the charge particle. Can you see? Yes, sir. Sir. तो अब जरा Sir, डायरेक्शन I cap. बताओ। I cap, sir. I cap. सबको देखो जरा, सबको ही ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो भाई। क्या डायरेक्शन निकल के आ रहा है? I I cap. cap. फिर से देखो, सर आई कैप आएगा। फिर से देखो भाई, ये फिंगर तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस केस में ये चीज तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनसाइड द प्लेन, पहला फिंगर। ये देखो, अब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ, अब पॉजिटिव चार्ज ले रखा था तो मोशन नीचे की तरफ हो गया। तो थंब किधर की तरफ पॉइंट करा? टुवर्ड्स द राइट कैप, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, इसके ऊपर फोर्स कैसा किधर की तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द राइट साइड, आई कैप। क्लियर है बात? ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा?
यस सर, हाँ या ना? हाँ आ सर, गया Yes, थोड़ा sir. थोड़ा। अब बेटा होगा क्या, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा तो इसका जो पाथ होगा ना, ये ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से इसको सर्कुलर पाथ में ट्रेस कराएगा। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमते हुए ऐसे यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहीं से, इस रीजन से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा और कुछ ऐसे निकल जाएगा। तो जो पाथ ट्रेस कर रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा होगा? सर्कुलर। इज दैट क्लियर? अरे अभी तुमने पढ़ा था ना कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने तुम्हें अभी समझाने की कोशिश करी थी, जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे ही फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। हाँ सर, तो अब इधर की तरफ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सीधे तो गया नहीं, उसने क्या किया, अपने पाथ को चेंज कर दिया, क्योंकि फोर्स अपवर्ड लग रहा था। तो अब और ये पाथ जो चेंज हुआ उसमें पाथ ट्रेस कैसा होगा? वो सर्कुलर आर्क की तरह ट्रेस करेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के, होगी। और इस वजह से हर जगह पे ये फोर्स, जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन न्यू हो गया, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन न्यू हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। तो इस तरह से ये हर इंस्टेंस में जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता जाएगा, वो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज होगा, फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन ये फोर्स हमेशा विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन, और इसकी वजह से जो पाथ ट्रेस्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा हो जाएगा बच्चों? सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड हो जाएगा। आ गई ये बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. आज हम इस चीज को इतने पे ही रोकते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक पार्ट और कर ले फिर इसको रोकेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि चूंकि वेलोसिटी जो है, या सॉरी जो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ऐसा फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या याद है क्या है तुम लोगों को? यही तो था, याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितना लगा? QVB sin थीटा लग रहा था। हाँ सर, Yes, sir. If theta is equals to 90 degree, then force will be equals to QVB. Yes, sir. और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। दिस फोर्स is perpendicular to velocity, hence Yes. it will be our centripetal force. Yes. And under the influence of this centripetal force, that is every centripetal force is equals to mv square by r, and under the influence of this centripetal force the charged particle will move along a circular path. So the radius of the circular path will be given by the formula r is equals to mv upon qb. Now mv is momentum, so one can write down mv as p upon qb, and p can also be written as under the root of 2m ke upon qb. Momentum is under the root of 2m ke upon qb. हाँ बोलो बेटा। सर ये रेडियस सर्कुलर पाथ का है। हाँ, ये रेडियस उस सर्कुलर पाथ का आया जो सर्कल ट्रेस हो रहा था। ओके सर। Okay, so this is the place where we are going to stop our study for today. Okay, we will सर continue एक सेकंड this. रुकिएगा, We will continue this on the next one. हाँ बोलो बेटा। एक सेकंड।